All right, ladies and gentlemen. So the topic for today is D24. Okay, very important chart. And when you open your PL9, the D24 chart is also Chaturvimsha Chaturvimshamsha chart, and but we also call it as a Siddhamsha chart. Now, why this is called Siddhamsha? Siddhamsha, the word Siddh means Siddhi, okay, and this chart is basically to understand higher learning. And you know, see, there are two types of vidyas. I would be very honest with you with what I've learned is Paravidya and Aparvidya. So, even these are two aspects of your life. One is the spiritual knowledge that you are gaining through Jyotish, through various scriptures, through uh, various Shastras and Upanishads and so many other Puranas. And the second one is the knowledge of the mundane level, the materialistic knowledge, all that degrees that you do, BBA, MBA, BTech, MTech, MBA. So these are the two types of education which is available for us in the Kali Yuga. Okay. So what happens here is that, when you start learning, your life begins with the upper vidya. Okay. And at the mid age, you start learning the Paravidya. Paravidya is what you're learning right now. Okay. Which is, it's the knowledge of Jyotish, it's the knowledge of scriptures. It is actually the divine knowledge. It is actually the mantra shastra that you learn, or the wisdom. So that is Paravidya. So this D24 chart will tell you both whether you will attain spiritual knowledge in this life, which is Paravidya, and to what extent you will learn your mundane or the materialistic knowledge, which is Aparvidya. So this is what we will discuss today. Now, let me share my whiteboard with you people to make you understand how this particular chart works. There is a physical derivation of this chart as well. Okay. And based on the physical derivation, you can easily derivate this chart from your D1. These are the 24, the Rashi is divided into 24 parts. And I must tell you, in my birth time rectification process, I use this chart a lot. And I will tell you a technique to rectify your time as well with this particular D24. So आपको आज इसका भी ज्ञान हो जाएगा कि आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो रेक्टिफाइड है, सही है, या उसमें 2 4 5 मिनट का प्लस माइनस देयर इज अ ब्रैकेट और नॉट. So now I must tell you one more thing is that ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक एस्पेक्ट है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का. ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट. बट ये मत समझिएगा कि अगर वो प्रिंसिपल आपकी कुंडली पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो समहाउ वो अप्लाई ही नहीं होगा, मतलब समहाउ आपका टाइम करेक्ट नहीं है. लेकिन ये वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल है और 99% लोगों का ये मैच करेगा. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. So D24, which is 24 parts. Okay. So when I say 24 parts, so the sign would be divided into 1 degree and 15 minutes. Okay, 1 degree and 15 minutes का एक part होता है from 0 to 1 degree 15 minutes, and so onwards from 1 degree 15 minutes, and you move on to 2 degree and 30 minutes, and then 2 degree 30 minutes to 3 degree 45 minutes. तो इस तरह से जो है ये पार्ट्स, इसके 24 पार्ट्स किए जाते हैं up to 30 degree. And this starts from
Paravidya and Apar Vidya. So when I say Paravidya, right, which is directly, coming from Surya, sun. So Paravidya, Vidya, and Apar Vidya. This is sun. This is moon. This is also Shiva. Okay. And this is Ma Parvati. Parvati. Parvati is in the form of Lakshmi. And here Shiva is in the form of Dakshina Murti. Dakshina Murti Shiva. The Guru, the ultimate Guru, the teacher. Okay. So moon is the mundane knowledge. So what did you learn from this today? Right now, when I have written these two things, एक चीज तो clear हो गई. वो क्या clear हुआ? कि when we talk about money, okay, finance, beside Jupiter, I told you that moon is path towards your wealth. जो चंद्र है वो path है, right? So एक कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, पैसा, फाइनेंस, एजुकेशन. आप मुझे एक बात बताइए एवरीवन, why do you do your degrees and post graduations and everything? So that you can earn, so that you can do a good job, you can have good business. आप अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड में भेजते हैं पढ़ने के लिए, आप अपने बच्चे को भेजते हैं कि अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में हम उसको पढ़ाएं फॉर हिज करियर. You are not sending him to gain knowledge. You are sending him so that he can work in a good environment, so that he can earn money. So इसलिए हम उसको अच्छा भेजते हैं. So आज अगर आप मेरे से पूछो कि वीनस आपको लग्जरी देता है, आपको पैसा देता है, गाड़ी देता है, सुख देता है, फोर्थ हाउस का नेचुरल कारक है. फोर्थ हाउस का नेचुरल कारक है, लेकिन एक्चुअल में वो चंद्र है जो अपर विद्या देता है. अपर विद्या इज द विद्या ऑफ लर्निंग एट द मुंडेन लेवल. अपर विद्या इज द लर्निंग ऑफ मटीरियलिस्टिक गेन्स. वो चंद्रमा से आती है. अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा वीक है, आपको भाग्य की वजह से पैसा मिल भी रहा है, लेकिन आप उसको संभाल ही नहीं पाएंगे. You'll not be able to, you know, gather your money or save your money. It will come, touch and go. So this is very, very clear that moon is playing an important role. अच्छा, आपको एक फटाफट से एक चीज बताऊं, फटाफट से अपना D24 खोलो और आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में पैसा और एजुकेशन कैसी है, सिर्फ एक टेक्निक से. और सुपर्ब टेक्निक है. मुझे ये बताओ चैट के अंदर कि जो आपका मून है D24 चार्ट में, वो फिक्स्ड साइन में है, ड्यूल साइन में है, या मूवेबल साइन में है? फटाफट से बता दो. मूवेबल कौन सा है? 1, 4, 7, 10 मूवेबल है. ड्यूल कौन से हैं? 3, 6, 9 और 12. और फिक्स्ड कौन से हैं? 2, 5, 8 एंड 11. ये आपके जो है फिक्स साइन है. तो जिनका फिक्स साइन के अंदर है, ठीक है, दैट इज फैंटास्टिक. दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. ओके. जिनका ड्यूल साइन में है, विच इज एवरेजली गुड, और जिनका मूवेबल साइन में है, इट इज नॉट गुड. इट इज नॉट गुड. वाई इट इज नॉट गुड? अगर चंद्रमा फिक्स साइन में होगा तो ऐसे लोग अपने जीवन में किसी ना किसी लेवल पे पैसा
उनके पास आएगा, उसको ऑर्गेनाइज करके उसका धन जो है वो संचित कर ही लेंगे। दे विल समहाउ मेक लॉट ऑफ मनी। ड्यूल साइन वाले is a mediocre, it's a middle result, right? It is the knowledge to gain wealth. So people with the fixed sign in their life, in the materialistic life, they will get good knowledge कि कौन से शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, कौन सी पढ़ाई करें, कौन सी डिग्री करें, कौन सी फर्दर एजुकेशन ले मुंडेन लेवल पे, ताकि उनके पास चार अच्छे पैसे जुड़ सकें। सो वो फिक्स साइन वाले लोग कर लेंगे अपनी लाइफ में। और जिनका ड्यूल साइन के अंदर है वो दैट विल बी एवरेज रिजल्ट्स, ओके, दैट विल बी एवरेज रिजल्ट्स। और जिनका मूवेबल साइन में है उनके पास चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए वो जोड़ नहीं पाएंगे। तो जरा मूवेबल साइन वाले बताओ कौन कौन है, लिखो बताओ। हु ऑल आर इन द मूवेबल। वो आएगा फिर उड़ा देंगे, फिर बोलेंगे अब और कहाँ से आएगा, और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ठीक है ना। सो मूवेबल साइन वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, अब फटाफट से मुझे सन का बताओ। यही प्रिंसिपल सन का लगाओ D24 चार्ट के अंदर। सिद्धांशा चार्ट में D24 में अपना सूर्य बताओ, किनका फिक्स साइन में है, किनका ड्यूल साइन में है। अब ये देखो शनि का कितना एक सही कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकला है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक गेन में ना ये भाई साहब का दिमाग ठन ठन गोपाल है, राइट। ठन ठन गोपाल मतलब इसका दिमाग नहीं चलेगा कि मैं कैसे पैसे को मल्टीप्लाई कर दूं जबरदस्त तरीके से। लेकिन सन जो पर विद्या है उसमें फिक्स साइन में है, जिसको बोलते हैं ज्योतिष, राइट, रेकी हीलिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मंत्र शास्त्र। तो सूर्य क्या दे रहा है, सूर्य क्या दे रहा है हमें, सूर्य हमें पर विद्या दे रहा है, ठीक है, पर विद्या दे रहा है सूर्य हमें। और मून हमें क्या दे रहा है, अपर विद्या। फिक्स्ड साइन इज एक्सीलेंट, इट इज गुड, इट इज फैंटास्टिक। और जो है ये एक्सीलेंट है, जो ड्यूल साइन है ये गुड है, ठीक है, और जो मूवेबल साइन है ये बिलो एवरेज है, ठीक है। अब ये देखो वर्षा चौहान, सन एंड मून बोथ इन द फिक्स साइन, फैंटास्टिक वर्षा, राइट। आपकी एजुकेशन जो भी हो, लेकिन आपको पास नॉलेज अवश्य होगी। तो वर्षा आपकी वैसे फॉर्मल एजुकेशन क्या है, व्हाट इज योर फॉर्मल क्वालिफिकेशन वर्षा? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन इवन टाइप। So I did MPhil from Delhi University देख रहे हो, in science. ये देख रहे हो एमफिल वाले लोग, हाँ। एमफिल इज पढ़ाई, पढ़ना पड़ता है भाई साहब, राइट, बहुत पढ़ाई होती है। एमफिल इज गुड। सो सन एंड मून फिक्स साइन। देखो अगर आप अपने बच्चे को भी देखना चाहते हो ना कि मुंडेन लेवल पे उसकी एजुकेशन कैसे होने वाली है, सिर्फ उसका चंद्रमा देखो कि चंद्रमा अगर फिक्स साइन में है तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाती है एजुकेशन के अंदर। और अगर सूर्य फिक्स साइन में है तो आप ये लगा के चलिए कि आपका जीवन के अंदर जो अध्यात्म है, जो शक्ति है, विजडम, सतयुग की जो पढ़ाई है, वो हमें सूर्य से पता लगेगी D24 में। वैसे D24 का कारक बृहस्पति है, बृहस्पति से हमें बहुत चीजें पता लगती है, लेकिन बृहस्पति जो है वो उसका रोल बाद में आता है, पहले माता पिता का रोल आता है, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता। जब बच्चा पैदा होता है तो एक दिन का बच्चा गुरु को नहीं दे दिया जाता, उसके इनिशियल ईयर्स में उसका जो एक बेस है, किंडरगार्टन तक जाने से पहले माँ उसकी गुरु होती है, पिता उसका गुरु होता है। उसको उठना बैठना खाना पीना सब माँ बाप सिखाते हैं। माँ बताती है कि ये पापा है, ये मम्मा है, ये भाई है, ये दीदी है, ऐसे उठो, ऐसे करो। बाद में जुपिटर का रोल आता है, और जुपिटर के बाद फिर मरकुरी का रोल आता है। देन द नेक्स्ट रोल इज द रोल ऑफ द मरकुरी। सो चार ग्रह D24 में देखने बहुत जरूरी है। कौन कौन से? सन, मून, जुपिटर एंड मर्करी। ये चार ग्रह आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मर्करी क्या है? आपका कंसंट्रेशन लेवल है। अच्छा फटाफट से बताओ, अपनी कंसंट्रेशन देखने के लिए यही प्रिंसिपल लगा दो। लिखो जरा, लिखो, जो आपका मर्करी है कौन से साइन में है? इज इट इन द फिक्स साइन, इट्स इन द ड्यूल साइन,
और इट इज इन द मूवेबल साइन। अगर मूवेबल साइन में मरकरी है तो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती रहती है, इट्स कीप मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर। अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं 1 घंटे भी पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सके, 15 मिनट भी नहीं कर सके, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भटकती है। ऐसे लोगों को गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए जिनका मरकुरी खराब है D24 के अंदर। मरकुरी खराब होने का मतलब है या तो मरकुरी अफ्लिक्टेड है, राइट, मरकुरी कहीं ना कहीं नीच का हो गया, या मरकुरी जो है वो आपका अगर ड्यूल साइन में है तो मतलब आपकी फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। कभी ठीक है, कभी 1 घंटा आप कॉन्सेंट्रेट हो गए, कभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगी, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर किसी का मरकुरी फिक्स्ड है तो उसको जान लेना चाहिए कि उसके अंदर हिडन एबिलिटी है कॉन्सेंट्रेट करने की। सो अगर आप थर्ड आई पे मेडिटेशन कर रहे हैं, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप थर्ड आई पे मेडिटेशन कर रहे हैं और आपका मरकुरी और जुपिटर फिक्स्ड साइन में है D24 चार्ट के अंदर, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। सो आप यहाँ पे पॉइंट्स नोट करते जाओ। सन, मून, जुपिटर और मरकुरी, 4 तो ये ग्रह देखने हैं। ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। एक 5वां ग्रह है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो, और उस ग्रह को बोलते हैं शुभपति। शुभपति ग्रह कौन सा है? द डिस्पोजिटर ऑफ मून इन द D24 चार्ट। तो एक बड़ा सा स्टार बनाओ और यहां पर लिखो शुभपति, शुभपति ऑफ ऑफ D24, ऑफ D24 जो है विच इज द लॉर्ड ऑफ द मून साइन। ओके, सो जहां पर चंद्रमा बैठा है, राइट, द डिस्पोजिटर ऑफ द मून, डिस्पोजिटर ऑफ द मून। अगर डिस्पोजिटर ऑफ द मून वेल प्लेस्ड नहीं है, दुष्टाना में है, 6 8 12 के अंदर आपका डिस्पोजिटर ऑफ मून है, तो कहीं ना कहीं पर आपकी एजुकेशन में हमेशा मुश्किलें आएंगी। आपने मतलब अगर 6 8 में, 6 छठे भाव में है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। हम मुंडेन लेवल की बात कर रहे हैं क्योंकि कलयुग में चंद्रमा की पोजीशन सूर्य की पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है D24 चार्ट के अंदर। हाँ, यू बीइंग माय स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में हो सकता है कि सूर्य की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो क्योंकि आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन ले चुके हैं, आप अपने प्रोफेशन में हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके अंदर विजडम कितना आ सकता है। आपको ये देखना है कि आप एक धर्म, और धर्म की जो विद्या है, एक रिलीजन की विद्या है, एक शास्त्र जो है, उसको किस लेवल पे अचीव कर सकते हैं, वो आपको सूर्य से पता लगेगा। सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में केंद्र में है, त्रिकोण में है, 6 8 12 में है, त्रिक भाव में है, तीसरा भाव में है, कहाँ पर है आपके सूर्य की प्लेसमेंट? अगर सूर्य वेल प्लेस्ड है, फिक्स साइन में है, तो आपका रास्ता बहुत आसान होने वाला है, धर्म का, दान का, दया का, नॉलेज का। लेकिन अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है D24 के अंदर, तो यू नीड सम रेमेडीज, यू डेफिनेटली नीड सम रेमेडीज, जिससे कि आपका जो है सूर्य यानी कि आपकी जो पर विद्या है वो एक्टिवेट हो सके और आप अच्छे तरीके से अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकें। बिकॉज इस चार्ट का सबसे बड़ा मतलब ही पर विद्या और अपर विद्या को चेक करना है, और ये D1 से कभी कभी नहीं समझ में आता, तो हम जो है D24 पे चले जाते हैं। और चतुर्थ भाव देखिए, यहाँ पे चंद्रमा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कलयुग के अंदर चंद्रमा ही पैसे देता है। आपके सामने पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ 1 किलोमीटर के दूर पे इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप जाकर वहां से पैसे ले आइए, लेकिन आपको चलना ही नहीं आता, आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप पैसे कमाओ, आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप वहां पर जाकर जो है 4 पैसे लेकर आओ, तो फिर आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, कई लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, वो दूसरों को रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन अपनी वेल्थ के लिए वो इतना एफर्ट नहीं करते हैं, दे डोंट मेक मच एफर्ट। अच्छा, अब मेरे को एक और, हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। आप अपनी कुंडली से देखकर मुझे बताइए कि आपकी कुंडली में सन ज्यादा बेटर प्लेस्ड है कि मून ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। तो आप
अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है तो श्योर है कि उस बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, राइट। और अगर सन ज्यादा बेटर प्लेस्ड है तो आप ये श्योर है कि उस इंसान की जो जो विजडम है, जो अध्यात्म की जो पोजीशन है वो अच्छी होगी। अब आपको मैं एक चार्ट, अपना ही चार्ट दिखाता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में कौन बताएगा यहाँ पर। ये मेरा D24 चार्ट है। D24 चार्ट के अंदर चंद्रमा की पोजीशन क्या देख रहे हो आप? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मून? इट इज गुड, it is in the kendra, it is in the dual sign, but सूर्य is in the fixed sign। तो एक तो अच्छी चीज है कि मूवेबल में कोई भी नहीं है, ना तो सन है ना तो मून है, राइट। एक ड्यूल में है और एक फिक्स साइन में है। सो हु विल टेल मी विच इज मोर पावरफुल हेयर? सूर्य इज पावरफुल और चंद्र इज पावरफुल? The moon in the Kendra. मून इन द केंद्र। Sun, Which is more powerful? Sun is more powerful or moon is more powerful? Sun, Guruji. How is sun more powerful here? Moon doesn't have any directional strength. Okay. What else? Both. Plus Saturn is aspecting it with the dual sign. Is it not that the fifth lord is in the Kendra? The Trikona lord is in the Kendra? That makes moon very powerful. So that made me do the mundane level. मैंने अपने mundane level पे knowledge बहुत gain किया। जैसे अपना कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर और बहुत सारे डिविजनल यू नो जो बहुत सारे सर्टिफाइड वोकेशनल कोर्सेज किए, फिर ज्योतिष का पढ़ाई किया। तो स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उपच्य हाउसेस में है। देखिए ना, आप ये भी समझिए, इट इज इन उपच्य, सूर्य इज इन उपच्य। सो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 36 ईयर्स तक तो आपका जो मेन फोकस रहा होगा वो मनी, मुंडेन लेवल, एजुकेशन, इसकी तरफ रहा, बिल्कुल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन द मोमेंट आई क्रॉस 34 35 सडनली दिस फिक्स्ड सूर्य गॉट एक्टिवेटेड, राइट। सो आप डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि चंद्रमा की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा के साथ जो है शुक्र बैठा है। अच्छा, एक आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा हो, इसको दुग्ध योग बोलते हैं। दुग्ध योग मतलब इट इज प्योर मिल्क, राइट, इट इज प्योर मिल्क। सो ऐसे लोग जहां पे भी किसी की भी कुंडली में शुक्र चंद्र एक साथ बैठे होंगे ना, तो उसकी कुंडली के अंदर उसका कम्युनिकेशन स्किल प्रोफेशनली बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल होगा, बहुत स्वीट कम्युनिकेशन स्किल होगा। अगर किसी की कुंडली में शुक्र चंद्र सेकंड हाउस में बैठे हो, कोई कुंडली देख लेना, उस जैसा इंसान उतना उतना प्यारा कोई बोल नहीं सकता। सो स्वीट, चाहे वो पर्सनल लाइफ में इंसान कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन प्रोफेशनली सामाजिक तौर पे अगर शुक्र और चंद्र एक साथ हैं सेकंड हाउस के अंदर, इन द हाउस ऑफ द वे यू कम्युनिकेट, तो ऐसे लोग बहुत प्यारा बोलते हैं। देयर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी पोलाइट। तो ये एक वो योग बन जाता है। और जो जो चंद्र मंगल योग होता है उसको क्या बोलते हैं? एनीवन हु कुड टेल मी, चंद्र मंगल योग को क्या बोला जाता है? लक्ष्मी योग। अरे नहीं बेटा, चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी योग इज डिफरेंट। चंद्र मंगल योग जो होता है उसको रुद्र योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, रुद्र योग बोलते हैं। ओके, सो रुद्र योग होता है चंद्र और मंगल का जो योग रहता है, इसको रुद्र योग सर्च करिएगा। रुद्र योग इज दी चंद्र मंगल। और D4 के अंदर अगर किसी का चंद्र मंगल एक साथ है तो वो एक अच्छा योग नहीं माना जाता है, राइट, क्योंकि किसी तरह से भी चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, ग्रह दृष्टि के हिसाब से, राशि दृष्टि तो नहीं, ग्रह दृष्टि के हिसाब से चंद्रमा के ऊपर कोई एस्पेक्ट है? इज देयर एनी एस्पेक्ट? इज देयर एनी एस्पेक्ट? No, Guruji. No. Saturn का 10th. 10th एस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसमें मुझे परेशानी, फाइनेंशियल इश्यूज थे मेरी लाइफ के अंदर, और फाइनेंस को लेके दिक्कत आई, कुछ चीजें डिले हुई, मुझे अपनी
पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अपनी ग्रेजुएशन के कई सालों के बाद जाके मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो देयर वाज अ गैप ऑफ 5 to 6 7 8 years। और यहाँ पर अगर चंद्रमा के ऊपर आपकी कुंडली में D24 के अंदर राहु या शनि या मंगल का कोई भी संबंध या दृष्टि अगर पड़ती है चंद्रमा के ऊपर, तो आपकी अपर विद्या में प्रॉब्लम्स आएंगी until and unless वो ग्रह शुभपति हो। ओके, until unless that planet is शुभपति। सो मुझे कोई बताएगा कि मेरी कुंडली में शुभपति कौन है? Jupiter. जुपिटर इज दी शुभपति। क्यों? क्योंकि जुपिटर चंद्रमा का डिस्पोजिटर है। ठीक है, और क्या शुभपति वेल प्लेस्ड है? No, Guruji. 12th. क्या शुभपति का कोई परिवर्तन है? लग्न लॉर्ड है, लग्नेश है। इज इट इन दी परिवर्तन? यस सर। Yes, sir. Saturn and Jupiter. ओके, लगन और द्वादश भाव का परिवर्तन योग बन रहा है यहाँ पे। चंद्रमा पापकर्त्री में है? नहीं है। ओके, आपको क्या देखना है? चंद्रमा किसी पापी ग्रह से अफ्लिक्टेड ना हो। शनि, राहु, मंगल, दीज आर स्ट्रॉन्ग मेलेफिक्स। इसके साथ अगर आपका चंद्रमा अफ्लिक्टेड है कुंडली के अंदर, तो आपको D24 के अंदर प्रॉब्लम आएगी, राइट। और दूसरा, अगर उसका जो शुभपति है वो वैसे तो द्वादश में बैठा है, लेकिन वो लगन में जो शनि बैठा है उसके साथ परिवर्तन, वैसे तो ये दैन्य परिवर्तन है लेकिन फिर भी ये परिवर्तन है। तो एक परिवर्तन योग के अंदर यहाँ पर वो जाकर बैठा है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पर बताऊंगा जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, और आपको सारा D24 एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है यहाँ पर हो जाएगा। सो लेट मी मेक अ चार्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो पर विद्या है वो भी दो प्रकार की विद्या होती है। एक पर विद्या वैसी विद्या है जो आप लोग ले रहे हो मेरे से। कौन सी ले रहे हो आप मेरे से? जो कि धर्म की विद्या है, ज्योतिष है। और ज्योतिष को कौन से भावों से देखा जाता है अगर हम पर विद्या की बात करें? और दूसरी जो पर विद्या होती है वो बहुत पावरफुल विद्या है जो हनुमान जी ने अपनी लाइफ के अंदर अचीव की थी, उसको बोलते हैं सिद्धियां। तो आप सिद्धियों तक तो शायद नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड जो तपस्या है वो करनी पड़ती है, तो फिर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। वी हैव 8 टाइप्स ऑफ सिद्धीज। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सो विच इज हनुमान जी। और दूसरी जो विद्या होती है दैट इज द विद्या ऑफ द धर्मा। सो धर्म की विद्या कहाँ से देखी जाती है? 4th हाउस से, 5th हाउस से और 9th हाउस से। चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च के होते हैं, आपकी फॉर्मल गुरुकुल है। 5th हाउस आपका मंत्रेश भाव है और 9वां भाव आपका धर्म है। हम ज्योतिष में 4th 5th और 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने जीवन के अंदर। और जो सिद्धियां हैं वो देखी जाती हैं 4 8 एंड 12 से। सो सिद्धियां में S S एंड S। सो अगर आप अपनी लाइफ में सिद्धि अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सो 4 8 एंड 12 से देखी जाती है अगर आप सिद्धि अचीव करना चाहते हैं। सो अगर आपका शुभपति 4th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस के अंदर है, तो आप अपने जीवन में सिद्धि के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर आप सिद्धि अचीव। क्योंकि मोक्ष भाव के अंदर अगर आपका शुभपति बैठा है या सूर्य बैठा है, सो इफ यू हैव सूर्य सन और योर शुभपति इन 4 8 एंड 12, शुभपति इन 4 8 एंड 12, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप अपने जीवन में अगर ट्राई करो सिद्धि पाने की, तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो कोई मुझे बता सकता है कितने तरह की सिद्धियां, 8 कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं? कुछ एनीवन हु हैज द नॉलेज, व्हाट आर 8 टाइप्स ऑफ सिद्धीज? Vak Siddhi. I know just one. Vak Siddhi. ओके, और लकीमा, सॉरी
There is one Lagima, right? यस, लघिमा होता है कि यू बिकम कंप्लीटली वेटलेस, जीरो वेट। ओके चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने प्रकार। नंबर 1 जो सिद्धियां हैं मैं आपको लिख देता हूँ। पहली सिद्धि होती है अनीमा। अनीमा इज दी सिद्धि। ओके, ये सारी सिद्धियां जो है हनुमान जी के पास हैं। अनीमा सिद्धि इज यू नो रिड्यूसिंग योर बॉडी टू दी एज रिड्यूस्ड एज लाइक ए एटम, अपने आप को लघु बना लेना, राइट। सो you reduce yourself to the size of a neutron or an atom, बहुत छोटा सा अपने आप को बना लेना। दूसरी जो सिद्धि होती है उसको बोलते हैं महिमा। ओके, महिमा इज एक्सपैंडिंग द बॉडी टू इनफाइनाइटली, अपनी बॉडी को बड़ा बना लेना। जैसे हनुमान जी ने वहां पर अपने आप को बड़ा जो है बना लिया था, जब वो लंका पहुंचे थे, तो इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली यू मेक योर सेल्फ लार्ज। जो तीसरी सिद्धि है उसको बोलते हैं गरिमा। सो गरिमा जो है वो एक सिद्धि है। सो गरिमा का मतलब है व्हेन यू बिकम इनफाइनाइटली हैवी, बहुत ज्यादा हैवी बन जाते हो आप। और चौथी जो सिद्धि है लघिमा, व्हेन यू बिकम, लघिमा इज व्हेन यू बिकम इनफाइनाइटली लाइट, बहुत ज्यादा वेटलेस जिसे बोलते हैं ना, आप वो हो जाते हो। सो दैट इज द फोर्थ सिद्धि। जो फिफ्थ सिद्धि है उसको बोलते हैं प्राप्ति। प्राप्ति, प्राप्ति इज व्हेन यू हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल द प्लेसेस, मतलब जहां पर भी आपने जहां भी पहुंचना चाहते हो विद इन सेकेंड्स आप पहुंच सकते हो, राइट। सो एक्सेस टू ऑल द प्लेसेस ऑफ द यूनिवर्स। तो जहां जाना है यू आर देयर, यू आर ओमनी प्रेजेंट, जहां मर्जी पहुंच जाओगे आप, राइट। अगली जो सिद्धि है वो है प्राकम्या, प्राकम्या सिद्धि, ठीक है। और ये है व्हेन यू नो कि सामने वाला क्या डिजायर करता है, when you can read the mind, when you can read the mind। आपको पता है ये वाली प्राकम्या सिद्धि सबसे इजी है अचीव करने के लिए, दिस इज द इजीएस्ट वन। और ये जो सिद्धि है वो किसके पास है आपको पता है आज की डेट में? जो वो कहते नहीं है लेकिन उनके पास वो सिद्धि है। वो कौन से हैं जिनकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है? बागेश्वर। हाँ। भागेश्वर, भागेश्वर धाम वाले जो है ना, उनके पास प्रकम्या सिद्धि है। वो मानते नहीं, उनको गुरुओं की। अब ये जो सिद्धि है ना, इसको अचीव करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं कि इसमें कौन से कैसे अचीव होती है। पहला इसका तरीका ये है कि आप खुद सिद्धि अचीव करो, इतने मंत्र करो, इतने मंत्र करो कि आप एक सिद्धि को अचीव करो। दूसरा, सपोज ये सिद्धि मेरे पास है, राइट, और मैं इसको आपको देना चाहता हूं, सो आई कैन इमीडिएटली गिव इट टू यू। फिर आपको अपने 40-50 साल 60 साल आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है कि आप जंगलों में जाओ। मतलब आपके गुरु ने वो सिद्धि अचीव की और आपको गिफ्ट कर दी, यू हैव बीन गिफ्टेड विद दैट सिद्धि। तो भागेश्वर जी के पास क्या हुआ? ही इज गॉट अ गिफ्ट, ठीक है। तो अभी उनकी एज तो 26 साल है, तो 26 साल की आयु में कोई भी इतने साल जंगलों में जाके थोड़ा ना जाके कुछ सिद्धि करेगा। तो उनके गुरु को लगा कि ये लड़का इसकी सही यूज करेगा, एंड इस गुरु, तभी आप देखिए वो हमेशा हर चीज में बोलते मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी दिया हुआ मेरे गुरुओं का दिया हुआ है मुझे। ही ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। सो दिस सिद्धि हैज बीन गिवन टू हिम बाय हिज गुरु। तो अगर आपको कोई गुरु ऐसे मिल जाए जो सिद्ध हो, जैसे गंडमूलों के लिए मेरे गुरुजी ने सीधा मेरे को बोल दिया था कि ये मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप गंडमूल वालों को, आप जिनका जन्म हुआ है, आप उनको ब्लेस कर दोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। सो दैट समथिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम अ गुरु, कि आपको बैठे बैठे कोई चीज मिल जाती है, उनका कोई प्रारब्ध होता है आपके साथ और वो आपको चीज गिफ्ट कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज अ सिद्धि। आगे बढ़ते हैं। सो जो 7वीं सिद्धि है
वो इष्टव सिद्धि है, इष्टव सिद्धि। जो इष्टव सिद्धि है, दैट इज आपको भगवान मिल जाते हैं, यू पोजेस लॉर्डशिप। ओके, टू पोजेस अ लॉर्डशिप, आपको जैसे हनुमान जी को श्री राम मिल गए हैं, श्री राम ही उनके लॉर्ड है, राइट। और आठवीं जो सिद्धि है वह सबसे पावरफुल, जिसके कारण आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल एनीवन। ओके, तो उसको बोलते हैं वास्तवा सिद्धि। वास्तवा सिद्धि इज पावर टू कंट्रोल, पावर टू कंट्रोल एनीवन एंड एवरीवन, कंट्रोल एनीवन इन दिस वर्ल्ड। और इन सिद्धियों का मिसयूज भी हो जाता है। और ये सिद्धियां जो है योग क्रियाओं से, वेरियस मंत्र है ऋग्वेद के अंदर, हर एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इतने लाख बार अगर आप सात्विक रह के वो मंत्र करते हैं तो आपको सिद्धि मिल जाती है। और इन्हीं सिद्धियों में से बहुत सी आगे सब सिद्धियां भी हैं, छोटी छोटी सिद्धियां भी हैं। जैसे अभी वाक सिद्धि के बारे में पारुल जी बात कर रहे थे, तो वाक सिद्धि जो है, इट इज वन ऑफ दी सिद्धीज। तो एक वन ऑफ दी सिद्धीज है जो इन्हीं में से एक सिद्धि निकली हुई है। सो दीज आर नॉट द मेन, जो 8 ये जो सिद्धियां मैंने आपको बताई, ये मेन 8 सिद्धियां हैं। इसके आगे बहुत सी सिद्धियां हैं। स्थान सिद्धि भी होती है। स्थान सिद्धि मतलब मैं यहां भी हूं और आप मुझे कहोगे हमने तो इनको जो है दिल्ली में भी देखा है, हमने इनको जो है वहां पे भी देखा है। तो स्थान सिद्धि होती है कि यू आर देयर ऑल्सो, यू आर हेयर ऑल्सो। तो कई लोगों को आप वहां नजर आओगे, कई लोगों को आप वहां जो है नजर आओगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि नीम करोली बाबा जी के पास फिर कौन सी सिद्धि थी? बताओ बताओ। Um, वास्तव सिद्धि, सिद्धि टू कंट्रोल, कंट्रोल कर लेना। अब ट्रेन ही रोक दी उन्होंने, हाँ, ट्रेन को ही कंट्रोल कर लिया, ट्रेन से उतारा, अब बोलो अब चला के दिखाओ ट्रेन, चलो हम बाबा जी यहाँ बैठे। जब तक बाबा जी ट्रेन में नहीं बैठेंगे ट्रेन ही नहीं चलेगी। तो ये कंट्रोलिंग थिंग्स, राइट, जो कह दिया वो होगा। और ये सारी सिद्धियां श्री राम जी और हनुमान जी की साधनाएं करने से सबसे जल्दी, अगर आप हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी क्या करेंगे, उनके पास जो सिद्धि है वो तो उनके पास ही रहेगी, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश जो है वो आपको गिफ्ट कर देंगे, ये लो, ठीक है ना। जैसे भागेश्वर धाम जी को एक गिफ्ट मिला उनके गुरु से कि ये लो एक सिद्धि ले लो, आप लोगों का माइंड, यार वो यहां तक जान जाते हैं कि उनके माता पिता बहन भाई कौन है, क्या नाम है। कितने सारे मीडिया लोगों ने उनको ट्राई भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ही नोस, he's सरप्राइज्ड। तो ये कोई आप आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसको बोलते हैं कि यू आर ट्राइंग टू रीड द माइंड। Okay, so it is not about reading the mind. There is a siddhi, there is a power. Only then you can connect to somebody's mind. ऐसे सिर्फ एक concentrate करके अगर आप किसी का mind read करने लगो तो ऐसे नहीं होता है, right? So बहुत सारे ऐसे psychic readers भी हैं इस दुनिया के अंदर, तो उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर वो सिद्धि है। उनको लग रहा है कि मैं concentration करके वो चीज करके हो रहा है। पूछो क्या Sorry, Vinali, want to say something? You're on mute. देखो कुछ अभी स्नैक आने वाला है थोड़ी देर में। Okay, so they're ordering a snack. Anyways, so तो ये वो सिद्धियां हैं। और अब सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं होगी, तो किन किन की लोगों की कुंडली में सूर्य 4-8-12 में या शुभपति 4-8-12 में है, बताओ यार, देखें कौन सिद्धि अचीव कर सकता है। हाँ मनस, क्या है आपका 4-8-12 में? गुरु जी मेरे 6 प्लैनेट्स है, मतलब 4-8-12 में। हाँ हाँ। हाँ, मैं 6 सन है। प्लैनेट्स नहीं पूछ रहा भाई साहब, मैं सिर्फ सूर्य और शुभपति की बात कर रहा हूँ। यस, सूर्य है एंड कौन से शुभपति भाव भी में? है, 8th में। और मतलब आपको जो भी सिद्धि मिल सकती है वो अकल्ट साइंसेस की सिद्धि मिल सकती है, तंत्र सिद्धि मिल सकती है अगर अष्टम भाव में है, ठीक है ना। हाँ। अष्टम भाव में सिद्धि मिलती है तंत्र सिद्धि। ओके, आफ्टर शुभपति इन द 4th हाउस बट डिप्लीटेटेड, सो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। शुभपति डिप्लीटेटेड नहीं होना चाहिए। अगर शुभपति डिप्लीटेटेड है तो लाइफ में डिफिकल्टीज है। शुभपति वीक नहीं होना चाहिए। ओके, आफ्टर परिवर्तन है तो सो आफ्टर परिवर्तन का मतलब है कि ये विष्णु जी की कृपा है आपके ऊपर, तो आपको जो है
और ये परिवर्तन कौन सा, दैन्य परिवर्तन है, 6-8-12 के साथ परिवर्तन है, किसके साथ परिवर्तन है सन? 5-8 सन। 5-8 का है, दैन्य परिवर्तन ही हुआ ना सूर्य का। हाँ तो ठीक है, आप सिद्धि ज्योतिष और कल्ट साइंसेस की सिद्धि जो अपने लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हैं। शुभपति मून इज इन द 4th हाउस, तो ये बहुत अच्छा है। शुभपति, आप शुभपति मून, अच्छा मून ही आपका शुभपति है क्या? ओके, सन शुभपति, मून इज इन द 4th हाउस। सूर्य का शुभपति नहीं होता, शुभपति केवल चंद्र का है। चंद्रमा का जो लॉर्ड है, जहां पर चंद्रमा बैठा है वही शुभपति है। ओके, सो द डिस्पोजिटर ऑफ द मून इज योर शुभपति। सो वो अगर जो है 4-8-12 में बैठा हो तो आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो अब मैं आपको एक और टेक्निक बताने वाला हूं जो कि बीटीआर में बहुत काम आएगी आपके। ये जो टेक्निक है इसको हमने बहुत बहुत तरीकों से हमने इसको अप्लाई किया है, और ये जो टेक्निक है ये वीपी गोयल जी की टेक्निक है, आई मस्ट टेल यू। और उन्होंने इसको बहुत सही तरीके से यूज किया और हमने भी इसको बहुत सही तरीके से यूज किया, तो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। ये जेमिनी सूत्र की एक टेक्निक है। देखिए जेमिनी के अंदर कारक होते हैं, ओके, आत्मा कारक, अमत्य कारक, मैत्री कारक, मातृ कारक, पितृ कारक, भ्रातृ कारक। तो आप अपनी कुंडली में D1 चार्ट में जाकर मुझे बताइए कि आपका मैत्री कारक एम फॉर मुंबई, एम के कौन है, विच इज द प्लैनेट विच इज द मैत्री कारक। क्योंकि एजुकेशन 4th हाउस से देखी जाती है, फर्स्ट एजुकेशन जहाँ पे बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो ऋषि जैमिनी कहते हैं कि मैत्री कारक। ठीक है, सो जस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई योर मैत्री कारक प्लैनेट। आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा मैत्री कारक ग्रह है। ओके, मून इज एम के लिख रही है श्रेया, आप अपना मैत्री कारक देख लीजिए कौन है। सन इज द मैत्री कारक। इस ग्रह का D24 चार्ट के अंदर 5th हाउस, 5th लॉर्ड या 5th हाउस में कोई ग्रह है उसके साथ संबंध होना चाहिए, तो आपका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है। पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हो उसके साथ संबंध हो, पंचम भाव के स्वामी के साथ संबंध हो, या पंचम भाव में वो बैठा हो, अगर आपके मैत्री कारक का कोई भी संबंध, आपको ढूंढना पड़ेगा संबंध। दृष्टि हो, बिल्कुल, ग्रह दृष्टि हो, राशि दृष्टि हो, कंजंक्शन हो, एक्सचेंज हो, संबंध हो आपका। अब मुझे मेरे चार्ट में कौन बताएगा, मेरे चार्ट में कौन बताएगा? टेक केस 7, कारका 7 नॉट 8, सनी टेक केस 7। मुझे बताओ यहां पर मेरा इस कुंडली के अंदर मैत्री कारक ग्रह कौन सा है? जुपिटर लिखा है, जुपिटर एम के लिखा है। ओके, जुपिटर का क्या संबंध बन रहा है 4th लॉर्ड के साथ? जो मेरा 4th लॉर्ड है वो जुपिटर के साइन में है, यस और नो? 4th लॉर्ड इज चंद्र, चंद्रा इज इन द साइन ऑफ, चंद्रा इज इन द साइन ऑफ जुपिटर, चंद्रा इज इन द साइन ऑफ जुपिटर, सो द टाइम इज करेक्ट। तो बीटीआर में ये बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन जो है वो यूज होती है। ओके, इट इज अ बिग एप्लीकेशन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दैट? विल टेक केस 7। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दैट? कोई ना कोई संबंध देखिए, राशि दृष्टि, ग्रह दृष्टि, किसी भी तरह की कोई दृष्टि आ रही है, राइट? आपका मैत्री कारक ग्रह D1 का, उसको लेके जाइए D4 के अंदर और देखिए कि D24 के 5th लॉर्ड के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध बन रहा है। अगर उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ, मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ, उसके साथ उसके साइन में बैठा है आपका मैत्री कारक, मान लीजिए यहाँ पे 5th हाउस में मंगल बैठा होता और मेरा जो मैत्री कारक है वो मंगल के साइन मेष में होता या स्कॉर्पियो में होता, तो भी संबंध बन गया। किसी भी प्रकार का कुछ संबंध सीधे सीधे बनेंगे और कुछ संबंध सीधे सीधे नहीं बनेंगे। अब आप
ये बोलेंगे सर हमने तो सारा कुछ कर लिया लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं बन रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम करेक्ट नहीं है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, नॉट दी टेक्निक। ओके, इट्स नॉट दी टेक्निक, देयर कैन बी सेवरल अदर इवेंट्स दैट वी कैन मैच। तो किस किस का मैच करता है बताइए, किस किस का मैच करता है? जिसका कि D1 का मैत्री कारक अर्जुन का कर रहा है, स्वप्निल एम के सिटिंग, राशि दृष्टि ऑल्सो एक्चुअली Taurus, so Lord itself, it is correct, my sons not in mind। ठीक है, तो आपको 90% ये आपको प्रिंसिपल जो है वो आप अगर ध्यान से बैठ के इत्मीनान से, क्योंकि जब मैंने अपना चार्ट देखा था तो शुरू शुरू मुझे लग रहा था कि अरे ये तो मिल ही नहीं रहा है, तो लेकिन इवेंचुअली मुझे लगा कि ओ जो है बृहस्पति क्या संबंध बना रहा है, बृहस्पति ने अपना घर ही दे दिया चंद्रमा को, फोर्थ मेरे फिफ्थ लॉर्ड को, फिफ्थ लॉर्ड ऑफ द D24। तो इस तरह से आपको जो है संबंध definitely you have to ask। So this is one of the techniques of the birth time rectification। BTR की एक टेक्निक है through D24 जो मैंने आपको लास्ट, राशि दृष्टि also actually sun is your time of birth is correct। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं आपको BTR की भी एक टेक्निक जो है यहाँ पर सिखाऊंगा। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और D24 का जो हाउस है वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है मैंने आपको यहाँ पर अभी और सिखाने हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज यहाँ पर देखिएगा, एंड दिस यू हैव टू सी इन द D24 चार्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने ये तो सुना कि फोर्थ हाउस स्कूलिंग का होता है, दिस इज यू नो सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फोर्थ हाउस जो है इट्स द हाउस ऑफ स्कूलिंग, ये स्कूल के लिए लिख दीजिए आप। ओके, कोई मुझे ये बताएगा किंडर गार्डन जो होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल का, 3.5 साल का बच्चा आज की डेट में, आज के स्कूल तो 2.5-3 साल का बच्चा लेना शुरू कर दिया है, वहां भेजते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। किंडर गार्डन कौन से भाव से देखा जाता है? हु विल टेल मी दिस? Kindergarten is seen from which house? Third Hmm? house. Second house, sorry, second house. Okay, third house is primary education। फर्स्ट क्लास से लेकर जो 5th क्लास की एजुकेशन है ना, वो थर्ड हाउस है। ओके, तो आपने क्या किया कि उससे पहला तो सेकंड हाउस ही होगा, तो उसको किंडरगार्टन बोल देते हैं, राइट? ऐसा नहीं है, आपका किंडरगार्टन इज सीन फ्रॉम द 12th हाउस, दिस इज द किंडरगार्टन। ओके, दिस इज किंडरगार्टन। और अभी आप सरप्राइज होने वाले हो जो लोग सेकंड हाउस के बारे में बात कर रहे थे। D24 के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि किंडरगार्टन 12th हाउस इसलिए है क्योंकि ये 9th हाउस है फ्रॉम द 4th हाउस। ओके, इट इज 9th फ्रॉम द 4th। ओके, सो आपका टेक्निकली किंडरगार्टन, अगर किसी की कुंडली में 12th हाउस में अफ्लिक्शंस हैं D24 के अंदर, किसी बच्चे की कुंडली आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि उसको किंडरगार्टन में जाने में, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किंडरगार्टन जाते ही नहीं है, सीधा प्राइमरी स्कूल में या UKG LKG में चले जाते हैं, सीधा लोअर केजी में, नर्सरी में डाला जाता है। नो, यू नो, नो किंडरगार्टन। लाइक माय यंगेस्ट सन रणविजय, यू नो व्हेन ही वाज बोर्न इन 2018, तो 2020 में लॉकडाउन था, सो ही नेवर वेंट टू किंडरगार्टन, वो कभी किसी किंडरगार्टन में गया ही नहीं है, राइट? सो ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन फ्रॉम द नर्सरी स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो उसको 4.5-5 साल का नर्सरी में डाला गया उसको। तो इस तरह से आप वो चार्ट आप देख सकते हो फ्रॉम द 12th हाउस। 4th हाउस इज बेसिकली योर स्कूल। अब आप ध्यान से देखना, 4th हाउस इज योर स्कूल, द कंप्लीशन ऑफ योर स्कूल इज 5th हाउस। ये D24 के स्पेशल रूल्स हैं। सो दिस इज स्कूल, एंड मैं 1 मिनट पहले ये रब कर लूं आपके लिए, ताकि आपको मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तो ये आपको चार्ट रीड करना आ जाएगा अगले 5 मिनट के अंदर कि आपने एजुकेशन जो है, अपर विद्या के बारे में, हमने पर विद्या के बारे में तो बात कर ही ली, हमने सन मून को देख लिया, मूवेबल साइन में है, ड्यूल साइन में है, फिक्स साइन में है, हमने ये भी देख लिया कि सिद्धि पाने का योग है कुंडली में कि नहीं है,
सन ज्यादा पावरफुल है कि मून ज्यादा पावरफुल है। और हमने इसी प्रकार जुपिटर को भी देखना है, जुपिटर पावरफुल है कि नहीं है। विजडम आएगा, गुरु का साथ आपके जीवन में रहेगा कि नहीं रखेगा। कंसंट्रेशन के लिए हमने मरकुरी को देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि शुभपति इस कुंडली के अंदर कैसा बैठा है। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हमने D24 के देख लिए। अब हम एजुकेशन डिग्रीज पे आ जाते हैं कि आप पीएचडी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या नहीं है। तो स्कूल, अब लोग बोलते हैं फिफ्थ हाउस कॉलेज है, यहाँ पर फिफ्थ हाउस कॉलेज नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्री कॉलेज। प्री कॉलेज का मतलब है कि आपकी लाइफ में कॉलेज जाने से पहले जो आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो, बहुत से लोग एंट्रेंस के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आकाश इंस्टीट्यूशन में लोग जाते हैं, बायजूस में जाते हैं, ये प्री कॉलेज है D24 का फिफ्थ हाउस। और ये फिफ्थ लॉर्ड आपकी कुंडली में बताता है, प्लेसमेंट ऑफ द फिफ्थ लॉर्ड विल टेल यू कि ये बंदा अपनी स्कूल कंप्लीट करेगा कि नहीं। कंप्लीशन ऑफ द स्कूल इज द फिफ्थ हाउस of the D24. So fourth house is school, right? And fifth house is the completion. Similarly, ninth house here is college. Okay, ninth house is college and 10th house is the completion of the college. So कई लोगों को कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाती है, लेकिन कॉलेज कंप्लीट नहीं होता। तो अगर 10th लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है, 10th लॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपका कॉलेज में अगर 10th लॉर्ड 6, 8, 12 के अंदर बैठा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है कि आपको किसी ना किसी वजह से, जैसे 12 में बैठा है तो पैसे की वजह से, आइसोलेशन की वजह से अकेले रह गए आप, या पढ़ाई नहीं कर पाए। 8 में बैठा तो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हिडन रीजन था जिसके कारण। 6 में बैठा तो बीमारी के कारण आप कॉलेज नहीं कंप्लीट कर पाए। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है, अनटिल एंड अनलेस शुभपति का एस्पेक्ट उसके ऊपर हो, या शुभपति उसको प्रोटेक्ट कर ले, शुभपति उसको बचा ले, तो वो बच जाएगा उससे। ओके। सिमिलरली जो मास्टर डिग्री है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मास्टर। तो ये आपकी पीजी हो गई। ओके, सो ये आपकी जी हो गई, ग्रेजुएशन। तो D24 के अंदर जो 9th हाउस है वो ग्रेजुएशन का है, जो सेकंड हाउस है ये पीजी का है, और पीएचडी का जो है वो 7th हाउस है। इट इज दी 7th house is the house of PhD, doctorate. So for the doctorate, it is the 7th house. So am I clear? So D24 के प्रिंसिपल जो है वो D1 की तरह नहीं है। 4th house is your school, okay? 9th house is your college, okay? This is university. Post graduation is the second house, and your PhD is the final. यहाँ पर राहु और केतु आपको एक घर में मिलेंगे। जहां पर भी राहु और केतु आपको एक घर में मिलेंगे, वहां पर आपकी पढ़ाई एंड होती है, राइट? वहां से उसके आगे अगर आपके राहु केतु आपको सपोज करो फिफ्थ हाउस में मिल जाते हैं, तो आपका जो है स्कूलिंग के बाद आगे पढ़ाई करना मुश्किल होगा, हठ योग से आप पढ़ाई करोगे। लेकिन राहु और केतु के टैबू को मरकुरी और जुपिटर तोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी तरह से मरकुरी या जुपिटर आपके राहु केतु के साथ बैठ गए, या राहु केतु के साथ कोई भी संबंध बना लिया, तो आप अपने जीवन में अनलिमिटेड पढ़ाई कर सकते हो। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। आप सारी जिंदगी नॉलेज अचीव करते रहोगे। जो राहु और केतु को कौन ब्रेक कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मरकुरी और बृहस्पति। इस कुंडली के अंदर राहु केतु को कोई ब्रेक कर रहा है? इज राहु केतु बीन ब्रोकन बाय मरकुरी? मरकुरी साथ बैठ गया ना। अगर मरकुरी या बृहस्पति आपकी कुंडली में राहु केतु के साथ दृष्टि या संबंध बना रहा है, तो आपकी कुंडली के अंदर आप अनलिमिटेड पढ़ाई कर सकते हो। जितना आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। ये भी एक है कि मैं कितना पढ़ूंगा, आप डबल डॉक्टरेट, जितना भी आप डॉक्टरेट करना चाहते हो, 1 डॉक्टरेट 2 3 4 आप कर सकते हो। विद्या पे विद्या ग्रहण कर सकते हो। तो वो एक लिमिटलेस पढ़ाई जो है वो आपको देता है। राहु केतु को ब्रेक करने, स्टार बना के लिख सकते हो कि राहु केतु को मर्करी जुपिटर ब्रेक कर सकता है या शुभपति ब्रेक कर सकता है। ओके, शुभपति विल आल्सो ब्रेक राहु केतु। तो अगर राहु केतु के साथ शुभपति बैठ गया तो ये मत समझना कि शुभपति खराब हो गया। इनफैक्ट उस शुभपति ने आपके राहु केतु को ब्रेक किया है, तो आपके पास एंडलेस पढ़ाई करने का जो है कुंडली के अंदर योग बन जाता है। तो पीएचडी की कंप्लीशन कहां से देखी जाएगी? कंप्लीशन ऑफ पीएचडी सीन फ्रॉम दी
8th हाउस। तो आपके पास कुंडली आएगी, लोग बोलेंगे जी हमारी पीएचडी नहीं कंप्लीट हो रही, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने 8th हाउस देखना है, किसका? D24 का। सो आप D24 का 8th हाउस, 8th लॉर्ड, उसको अगर 8th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो आपको उसके हिसाब से रेमेडीज करवानी। आप 8th हाउस का जेमस्टोन भी डलवा सकते हो टेम्परेरी, 8th लॉर्ड का अगर आप जेमस्टोन टेम्परेरी डलवा दोगे और उसको बोलना जैसे ही आपकी पीएचडी खत्म हो उसका उतार दो, चाहे वो मारक है, योग कारक है, आपके D1 के साथ रिलेटेड है नहीं है, कॉलेज नहीं किसी का कंप्लीट हो रहा, तो आप ना 10th लॉर्ड का जेमस्टोन डलवा दो, कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही तो 3rd लॉर्ड ऑफ द D24, ये कंप्लीशन है आपकी मास्टर डिग्री की, तो इसका जेमस्टोन आप डलवा दीजिए, व्रत करवा दीजिए, इसके देवता की पूजा करवा दीजिए, तो आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाएगी समहाउ। जो आपकी वोकेशनल एजुकेशन आती है, जिसमें आप जैसे आप पायलट का कोर्स कर रहे हैं या आप एयर होस्टेस का कोर्स कर रहे हैं, वो टेक्निकली कॉलेज लेवल का ही होता है। सो 9th एंड 10th लेवल को ही हम उसको देखते हैं, विच इज आफ्टर, जिसको प्री स्कूल के बाद लोग कर लेते हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो आप सेकेंड हाउस से देखेंगे उसको। अगर वो ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएशन वाला कोर्स कर रहे हैं तो आप उसको 9th हाउस से देखेंगे, उसकी कंप्लीशन जो है वो 10th हाउस से देखी जाएगी। ओके, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो कोर्स कर रहे हैं तो आप उसको सेकंड हाउस से देखेंगे। सेकंड हाउस में अफ्लिक्टेड है तो आपको वहां जाना ही मुश्किल होगा, एंट्रेंस मुश्किल होगा क्लियर करना। अगर सेकंड हाउस इजी है, आपको मिल गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो सेकंड लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, बट द थर्ड लॉर्ड इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो आपको कंप्लीशन में जो है उसके दिक्कत परेशानी का सामना अपने जीवन के अंदर करना ही पड़ेगा। ओके गुरुजी, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग CFA। तो ये ग्रेजुएशन के बाद है स्तुति? इज इट आफ्टर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन? आफ्टर ग्रेजुएशन ना। तो D24 में सेकंड हाउस का लॉर्ड तो ठीक है, मतलब CFA में आपको एडमिशन तो मिल गई, लेकिन थर्ड हाउस लॉर्ड को देखना पड़ेगा, उसके उपाय जो है आपको करवाने पड़ेंगे। वी कैन कनेक्ट पर्सनली स्तुति, क्योंकि आपका चार्ट मैंने देखा है अभी, तो मैं थर्ड हाउस का आपको रेमेडी बता दूंगा। जरूरी नहीं है कि वो एक जेमस्टोन हो, देयर कैन बी सर्टन मंत्रस, बट द बेस्ट मंत्र फॉर द कंप्लीशन इज द गणेश साधना। क्योंकि आप ये देखिए ना, जो आपकी एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, 4th हाउस से देखी जाती है, उसका जो फ्यूचर है वो 8th हाउस में है। 8th स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इज गणेशा। तो ये हमें मुनि पराशर बताते हैं कि आपके D24 में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आपको गणेश जी की साधना करनी है। यू हैव टू बिकम एन एविड डिवोटी ऑफ गणेशा। तो गणेश संकट नाशन स्तोत्र, तो उसमें भी जब गणेश संकट नाशन स्तोत्र पढ़ते हैं, 2.5-3 मिनट का है, 12 नाम है गणेश जी के उसके अंदर, तो उसमें भी ये कहा है कि जिसको विद्या का दान चाहिए होता है, गणेश जी उसको विद्या का दान दे देते हैं, जिसको धन चाहिए होता है उसको धन दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको गणेश जी की साधना और स्पेशली चतुर्थी का व्रत जो है वो आपको करना चाहिए। अभी तो बताया मोनिका, अगर आपको एंट्रेंस का देखना तो D24 का 5th हाउस प्री कॉलेज, सारे एंट्रेंस टेस्ट जो हैं, ऑल दी एंट्रेंस टेस्ट जो हैं आपके D24 के 5th हाउस से देखे जाएंगे। सो 5th लॉर्ड, 5th हाउस, दैट शुड बी वेल प्लेस्ड। ज्योति, यू हैव अ क्वेश्चन? आपने? जी गुरुजी। हाँ जी बताइए। मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन मैंने मास्टर के लिए 2-3 बार फॉर्म भरे, लेकिन हुआ ही नहीं। अब पता चला वो सेकंड हाउस में जेमिनी है, राहु केतु उसके साथ में है, तो जेमिनी का मेरे को स्टोन पहनना पड़ेगा ना? अब जब उसको एंट्रेंस ही नहीं मिला आपको, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। उसकी या तो उसके साथ मरकुरी होता है, बृहस्पति, तो वो राहु केतु ने उसको खत्म कर दिया, वहां पे स्टॉप कर दिया, फिनिश ओके। कर दिया, तो वो मुश्किल है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में मिले। ठीक है ना। अब 9th लॉर्ड 8th में गया तो कॉलेज ही नहीं पहुंचे होंगे बिल गेट्स भाई साहब। नहीं, कॉलेज तो कंप्लीट नहीं किया नहीं, मेरा। आपकी बात नहीं कर रहे, मैं सनी का जवाब दे रहा हूँ, सॉरी। सनी ने कुछ लिख दिया। I think Guruji, I was just checked. They did 3 semesters. After that, they just dropped and हाँ, तो हो started गया ना, working कहीं with ना कहीं तो Microsoft. कल्याण हो ही गया Yeah. ना उसका। तो ये सब चीजें हैं। तो आई होप दिस चार्ट इज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस टू यू इन टर्म्स ऑफ पर विद्या एंड अपर विद्या बोथ।
ठीक है, तो मैं ये सारी डिफिकल्ट चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सी और चीजें निकल के आती हैं जो आप इधर उधर से नॉलेज लेंगे, लेकिन जितना प्रैक्टिस आप करेंगे डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर उतना ज्यादा जो है आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको D24 चार्ट? जी गुरुजी। राइट, ओके। आपकी पर विद्या अपर विद्या का नॉलेज आपको आया? यस, नो, मे बी? गुरुजी जो मास्टर मास्टर करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स दिए जाते हैं उसको भी हम 5th हाउस से देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 5th हाउस, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही देने हैं ना हमने, तो वो ग्रेजुएशन के बाद देने हैं। स्कूल के बाद जो एंट्रेंस देने हैं उसको 5th हाउस से देखना है, जो ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस देना है उसको हमने 9th हाउस से देखना है। पीएचडी के लिए जो हमने देखना है 9th, देखो 9th हाउस में ही आपकी हो रही है ना क्वालिफिकेशन पूरी, कॉलेज तो आप 9th हाउस में पहुंचे। उसके बाद जो 10th हाउस है आपका वो बताता है कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। सो 10th हाउस और 10th लॉर्ड आपको बताएगा आपकी एंट्रेंस, और कंडीशन ऑफ द सेकंड हाउस बताएगा कि चलो एंट्रेंस नहीं भी क्लियर हुआ तो आपको पेमेंट सीट के साथ एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे ज्योति जी की कुंडली में सेकंड हाउस में राहु केतु ही जाके बैठ गए, उन्होंने रोक दिया उसको, उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं हो पाया। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्कूल के बाद एंट्रेंस टेस्ट देखना है 5th हाउस से, कॉलेज के बाद एंट्रेंस टेस्ट देखना है 10th हाउस से, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट देखना है 3rd हाउस से। समझ गए आप मेरी बात? पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड हाउस में थी, उसका अगला घर बताएगा कि उसके आगे गाड़ी कहानी चलेगी कि नहीं चलेगी। और Got it. डॉक्टरेट के बाद भी कोई पढ़ाई होगी तो वो 8th हाउस से देखी जाएगी। एंड गुरुजी आपने जो अभी सिद्धीज के बारे में बताया था तो आपने बोला कि 8th हाउस में होगा तो अकल्ट से रिलेटेड सिद्धीज मिलेंगी। 6th और 12th में कैसी सिद्धीज मिलेंगी, मतलब कौन सी सिद्धीज? कैलकुलेशंस वाली है, 12th में मोक्ष की सिद्धीज है, Okay. मैथमेटिशियंस की सिद्धि, छठे भाव में वाक सिद्धि मिल सकती है, दुश्मनों पे विजय प्राप्त तो करने की 4th सिद्धि। 12th में हो गया ना, तो 8th के लिए तो अकल्ट, 4th के लिए आपने बोला कौन सी वाली? एजुकेशन के ऊपर ज्योतिष की सिद्धि, जैसे Okay. वैदिक शास्त्र के अंदर आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जो आप कह देंगे कि आपका ये हो, कुंडलियों को भी उसके वचन को निभाना पड़ेगा। 12th हाउस में सिद्धि होगी तो आपको मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जैसे मेरा शुभपति द्वादश में है। Yeah. और गुरुजी ये जो अपर विद्या वाली जो आचार्यस और जो लाइक ऐसे ये वाली जो डिग्रीज होती हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आचार्य जो ज्योतिष की है ना, ये सारी पर विद्या है, ये अपर नहीं है। ओके। ये जो आप बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक ये सब करते हो ना, ये अपर विद्या है, जहाँ से मटीरियलिस्टिक, मुंडेन, जितना भी ज्योतिष की जो नॉलेज है, आप ज्योतिष अगर अचीव कर रहे हो तो आपको देखना आपका बृहस्पति वेल प्लेस्ड है कि नहीं है, 4-8-12 वेल प्लेस्ड नहीं है, आपका जो सूर्य है उसकी कंडीशन क्या है। अगर आपका सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरा जो सूर्य है वो उपच्य हाउस में था, ठीक है, तो आफ्टर द एज ऑफ 36 एकदम से इंक्लिनेशन हुई, तो सूर्य की पोजीशन जो है वहां से देखी जाएगी। लेकिन कलयुग में क्या है कि इसको डिग्रीज का नाम दे दिया, पीएचडी इन ज्योतिष, पीएचडी, तो फिर उसको हमें जो है वो अपर विद्या में ही लाना पड़ेगा, अपर विद्या के कॉन्सेप्ट से ही, अलोंग विद द पोजीशन ऑफ द सूर्य। थैंक यू गुरुजी। ठीक है, चलो आज इतना ही।